So we'll start off with a very quick recap of what we have learned in the last session. हम लोग सिर्फ टॉपिक मेंशन करेंगे क्या क्या हमने देखा। हमने लास्ट लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था। तो वी हैव सीन बेसिक्स ऑफ, इफ यू रिमेंबर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द normal drawn at the point of incidence lie in the same plane. Then angle of incidence is equal to angle of reflection provided reflection is in the same medium. फिर हमने देखा laws of refraction, the incident ray, the refracted ray and the normal drawn at the point of incidence lie in the same plane. Angle of incidence and angle of refraction are related to each other by Snell's law. Mu1 sin I equal to mu2 sin R. उसके बाद हमने देखा था different theories which try to explain nature of light. So it started off with Newton's corpuscular theory. Basic idea behind Newton's corpuscular theory was न्यूटन ने लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया था, राइट। तो कॉर्पस्कल मतलब पार्टिकल्स। So according to Newton, every source of light emits large number of tiny particles, right, in its surrounding medium. These particles are known as corpuscles. Then, as you remember, याद है क्या, थोड़ा थोड़ा याद है आपको थ्योरी? Different colors of light are due to different sizes of corpuscles. These corpuscles are rigid, elastic and weightless. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे, assumptions थे. There were some successes and some failures. Successes सिर्फ दो ही थे. Newton's corpuscular theory could explain total reflection and total refraction. ये दोनों phenomena छोड़ के Newton's corpuscular theory could not explain any other observed phenomena satisfactorily. पार्शियल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, नथिंग वाज एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसके बाद आया यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज नथिंग बट longitudinal wave. Different colors of light are due to different wavelengths of longitudinal wave. When longitudinal waves enter our eye, we get sensation of light, etc., etc. राइट। उसके बाद क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो यूजेंस इमेजिन्ड और ही बेसिकली सेड कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है जो हर जगह पे प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है लुमिनिफेरस ईथर। तो ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम अज्यूम किया गया टू एक्सप्लेन हाउ लाइट इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्योंकि रिमेंबर, अगर लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ मैकेनिकल वेव, इसका मतलब उसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो फॉर दैट रीजन यूजेन ने एक हाइपोथेटिकल मीडियम अज्यूम किया था, लुमिनिफेरस ईथर। देन देयर वर सम सक्सेसेस, सम फेल्यूर्स। फेल्यूर्स में सबसे पहला फेल्यूर तो ये था दैट it could not explain polarization of light. Then वो जो लुमिनिफेरस ईथर नाम का सब्सटेंस था वो कभी मिला ही नहीं, राइट। और बाकी फेल्यूर्स थे, एज आई टोल्ड यू वी विल जस्ट क्विकली रिवाइज, सो आई विल नॉट गो इनटू अदर फेल्यूर्स। उसके बाद थर्ड थ्योरी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मतलब लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो लाइट इज it consists of oscillating electric and magnetic fields which are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. गुड। तो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली हमारा यहाँ तक हुआ था। इसके आगे हमने प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज डिस्कस किए थे। तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लाइट आर सोर्सेज विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. Any primary source can produce its own light because of three reasons: chemical reaction, temperature, or passage of electric current. Then there are secondary sources of light, the sources of light which do not produce their own light but reflect or scatter light from other sources are known as secondary sources. Good. तो अब हम आगे जाएंगे, इसके आगे we will try to understand what is a wave front. अब ये वेव फ्रंट समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सा काम करेंगे. वी विल टेक अ सोर्स ऑफ लाइट S. There is some source S which is emitting light in all directions. तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है S जो लाइट इमिट कर रहा है हर डायरेक्शन में. इमेजिन द स्पीड ऑफ लाइट, और डेफिनेटली इसका सराउंडिंग मीडियम एयर है.
So we have imagined a source of light S, which is placed in air. It is emitting light in all direction. Imagine the speed of light in air is c. So in time t, in time interval t, what is the distance traveled by light? C into t, speed into time. ऐसे ही होता है ना, स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, टाइम इज सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल तो मीटर। तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसके सराउंडिंग में एयर है। ये सोर्स ऑफ लाइट हर एक डायरेक्शन में वेव्स को इमिट कर रहा है। अगर सराउंडिंग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज सी, तो टाइम टी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच वेव विल बी सी इंटू टी। यहाँ तक क्लियर? गुड। मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी टू राइट हियर, तो थ्योरी तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझ लेंगे व्हाट इज अ वेव फ्रंट, एंड आई जस्ट राइट डाउन व्हाट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। तो क्योंकि मैंने अभी मेंशन किया कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इट इज इमिटिंग लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस, तो ऑल द डायरेक्शन मतलब हर एक डायरेक्शन में लाइट इमिट हो रहा है, हर एक डायरेक्शन में। तो हर एक डायरेक्शन में वेव वेव्स टी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? सी टी, एंड दे विल रीच द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। तो ऑल ऑफ देम विल रीच अ सरफेस ऑफ अ कॉमन स्फीयर, है ना, क्योंकि हर डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस सेम ट्रेवल हुआ तो हर डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कितना है? सी टी। तो ऑल दीज वेव्स रीच द सरफेस ऑफ अ कॉमन स्फीयर, राइट। और ये जो कॉमन स्फीयर बना इसको हम लोग बोलते हैं वेव सरफेस या फिर वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं इसको? वेव सरफेस और वेव फ्रंट। तो आई जस्ट पुट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो व्हाट इज द आइडिया? हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट था, तो व्हाट इज एस? एस इज सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड इन एयर, मतलब सराउंडिंग मीडियम एयर है, तो प्लेस्ड इन एयर। व्हाट इज सी? सी इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। व्हाट इज सी टी? डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड by waves, by waves in time t। गुड, राइट। तो ये जो सारे वेव्स है, all the waves all the waves reach will reach the surface of a common sphere, of a common sphere with radius ct, with radius कितना बन जाएगा स्फीयर का? ct, with radius ct। और सेंटर क्या है? सोर्स है, with source at the center of radius ct, with source s at the center। और ये जो हम लोगों ने ये जो स्फीयर लिया, दिस स्फीयर और दिस सरफेस, बेटर ऑफ दिस सरफेस, इस सरफेस को क्या बोलोगे? इज नोन एज वेव सरफेस, इज नोन एज वेव सरफेस। और इट इज सेड टू बी वेव फ्रंट और वेव फ्रंट। अभी वेव फ्रंट डिफाइन करने से पहले हम लोग एक बार वापस कनेक्ट कर लेते हैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर इज वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट व्हिच इज प्लेस्ड इन एयर। हमने जैसे ही सोर्स को टर्न ऑन किया, हर डायरेक्शन में वेव्स इमिट हो रहे हैं, और क्योंकि सराउंडिंग मीडियम एयर था तो वेव का स्पीड एयर में होगा सी। इसका मतलब टाइम टी में हर एक वेव डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सी टी। तो ये सारे के सारे वेव्स सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करके एक कॉमन स्पीयर के सरफेस पे पहुंच जाएंगे। ये सारा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। और ये जो सरफेस है ये स्पीयर क्यों दिखेगा? क्योंकि रिमेंबर ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के अगर पॉइंट सोर्स देते हो तो इट इमिट्स लाइट इन ऑल द डायरेक्शन। तो जो सरफेस बनता है वो क्या होता है? स्पेरिकल इन शेप। इस सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग? वेव सरफेस और वेव फ्रंट, वेव सरफेस और वेव फ्रंट। रिमेंबर दिस, ओके। ये तो ये तो हमने थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मुझे वेव फ्रंट डिफाइन करना है। तो वेव फ्रंट डिफाइन करने के लिए हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में आपने कहीं तो लोकस ये वर्ड सुना होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज अ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, उसको हम लोग बोलते हैं लोकस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ड्रॉ सर्कल, इट इज ऑल्सो लोकस, क्योंकि एनी पॉइंट विल, यस,
any point of this circle will satisfy x square plus y square equal to r square. If I draw a straight line passing through origin, it is also locus because it satisfies y equal to mx. Similarly, you take the equation of parabola, hyperbola, whatever it is, they are all set of points which satisfy a given geometrical condition. तो वेव फ्रंट भी तो वही है. क्या हो रहा है, ये सारे वेव्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी टी. मतलब ये सारे के सारे वेव्स, ऐसा इमेजिन करो सरफेस पे जब पहुंचे तो ये हर एक पॉइंट है, क्योंकि जब ये वेव सरफेस पे पहुंचा तो ये एक पॉइंट बन गया विद ज्योमेट्रिकल कंडीशन दैट कि जहां से निकला था सरफेस तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी टी. यहाँ पे मैंने दूसरा वेव लिया, अगेन सेम थिंग, ये सरफेस तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सी टी. तो ये जो सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस, इट इज नथिंग बट अ लोकस. तो डिफाइन कैसे करोगे? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स at which at which at which all the waves reaches simultaneously. तो ठीक है, लेकिन दे हैव अ कंडीशन, दे हैव सेम फेस. देखो लिखा होगा वहां पे, तो क्या लिखा है नोट्स में, लिखा है नोट्स में, आपको बताया है यहाँ पे, a locus of all the points of medium to which waves reach simultaneously so that all the points are in same phase is known as wave front. So locus of all the points of medium at which all the waves reaches simultaneously so that so that so that all of them, मतलब waves, so that they are in same phase, is known as wavefront, राइट. तो वेव फ्रंट का सिंपल सा मतलब होता है द फ्रंट पार्ट ऑफ अ वेव फ्रंट. ओके, गुड. अब ये वेव फ्रंट तीन टाइप के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन. तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट वो एज अ अलग टॉपिक नहीं दिया है आपको नोट्स में, उसमें ही सब लिखा है मैंने, वेव फ्रंट्स के अंदर ही सब कुछ लिख के रखा है. तो डोंट ट्राई टू फाइंड दिस एज अ सेपरेट टॉपिक, यू विल नॉट फाइंड इट आउट. तो सिर्फ यहाँ पे मैं सेपरेट करके दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. स्पेरिकल वेव फ्रंट में वेव फ्रंट का शेप स्फीयर होता है. और स्पेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है? जब आपके पास जो सोर्स हो वो पॉइंट सोर्स हो. यू हैव अ वेरी स्मॉल पॉइंट सोर्स बिकॉज अ पॉइंट सोर्स विल इमिट लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. तो इन दैट केस जो आपके पास वेव फ्रंट का शेप बनेगा वो क्या होगा? स्पेरिकल होगा, राइट. तो द वेव फ्रंट फॉर्म्ड, या फिर द वेव फ्रॉम प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट सोर्स, the wave front produced by a point source is a spherical wave front, गुड. दूसरा है प्लेन वेव फ्रंट. एक्चुअली प्लेन वेव फ्रंट का जो सोर्स होता है वो स्पेरिक, मतलब वो पॉइंट सोर्स ही होता है, तो फिर इसको प्लेन वेव फ्रंट क्यों बोलते हैं हम? टेल मी वन थिंग, फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरे पास एक सर्कल है, एंड ऑफ कोर्स मैं जो बोल रहा हूँ वो वर्ड अच्छे से सुन लेना, क्योंकि मैं पहले सर्कल बोल रहा हूँ, बाद में मैं स्फीयर बोलूंगा. हम्म. मैं 2D से 3D में ट्रांजिशन करूंगा, इसलिए पहले तुम अच्छे से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ. मेरे पास एक सर्कल है, ओके. अगर सर्कल का एक छोटा सा पार्ट लेता हूं मैं, छोटा सा पार्ट, तो ये कैसा दिखता है तुमको? आर्क, मतलब इट इज कर्व्ड. नाउ इमेजिन मेरे पास एक बहुत बड़ा सर्कल है, तो मान लेना कि बहुत बड़ा सर्कल है, और इस बहुत बड़े सर्कल का एक बहुत छोटा सा पार्ट लेता हूं मैं, स्ट्रेट लाइन. अब इस 2D कॉन्सेप्ट को 3D में लेके जाओ. अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है जो हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगा, तो उसका जो वेव फ्रंट था वो स्पेरिकल था, राइट. इसका मतलब जो
पॉइंट सोर्स है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे है, स्मॉल डिस्टेंस पे है। तो स्मॉल डिस्टेंस पे हो तो वेव फ्रंट क्या बनता है, स्पेरिकल बनता है। नाउ इमेजिन कि वही पॉइंट सोर्स इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है। तो हम लोग उस बड़े स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, तो वो बनेगा प्लेन सरफेस। सर्कल का छोटा सा पार्ट एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्पीयर का, एक बड़े स्पीयर का छोटा सा पार्ट एक सरफेस होता है, सरफेस 2D। राइट, करेक्ट। तो प्लेन वेव फ्रंट, और ये याद रखना, मैंने जानबूझ के यहाँ पे सेपरेट किया उसको, स्पेरिकल पे प्लेन, क्योंकि जब तुम आगे डिफ्रैक्शन सीखोगे, डिफ्रैक्शन अभी और इंजीनियरिंग में, तब ये तुमको कॉन्सेप्ट बार बार लगेगा, इसलिए अभी से क्लियर करके चलो। तो हाउ डू यू प्रोड्यूस प्लेन वेव फ्रंट? हाँ, द पॉइंट सोर्स इज एट इनफिनिट डिस्टेंस, मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो देखो नोट्स में क्या बोला है, इफ द पॉइंट सोर्स इज केप्ट, if the point source is at a very large distance, then the wavefront is very small part of a sphere and is known as plane wavefront. Okay, so if, तो दूसरे टाइप का जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट है। तो प्लेन वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे? सोर्स को कहाँ रखेंगे, इनफिनाइट, बराबर। पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है। हाँ, नेचुरली ऑकरिंग प्लेन वेव फ्रंट कौन सा हो सकता है, जैसे लाइट कमिंग फ्रॉम सन, उसको तुम प्लेन वेव फ्रंट बोल सकते हो, because sun is at very large distance, या फिर light coming from any other star, you can say that it is plane wave front। लेकिन तुम अगर एक रूम के अंदर, जैसे सपोज ये लैब है, इस लैब में मुझे एक आर्टिफिशियल बल्ब लगा के, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट लगा के प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, करेक्ट। तो कैसे प्रोड्यूस करोगे? यू कैन नॉट कीप ऑब्जेक्ट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। क्या करेंगे? लेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। हाँ, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, हो ठीक। You should say diverging and converging. That is a basic idea. So if you remember, concave lens is diverging lens, बराबर। और convex lens is converging lens। वेरी गुड। अब जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो। मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, उसमें से लाइट कॉन्वर्जिंग होता है कि डाइवर्जिंग होता है? डाइवर्जिंग होता है, पॉइंट सोर्स है ना। इफ आई हैव अ स्मॉल बल्ब, इफ आई हैव अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, वहां दिखाया था मैंने ये, इसमें से लाइट कॉन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग है, बिकॉज लाइट इज इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स एंड इट इज गोइंग आउट इन ऑल डायरेक्शंस, तो ये लाइट डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट में जो वेव होते हैं वो क्या होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं। एग्री? क्या होता है? और प्लेन वेव फ्रंट में वेव्स क्या होने चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर, क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए? तो मुझे एक बात बताओ, स्पेरिकल वेव फ्रंट में सोर्स से जो वेव्स बाहर आ रहे हैं वो कैसे है, डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग वेव्स कौन सा वेव फ्रंट बनाते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट के लिए वेव्स कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, हम लेते हैं एक लेंस। ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है? कॉन्वर्ज करता है, डाइवर्ज नहीं करता है, कॉन्वर्ज करता है। इसके फोकस पे मैंने एक सोर्स रख दिया। क्या किया हमने, इसके फोकस पे एक सोर्स रख दिया। ये सोर्स कौन सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। तो रेस कैसे जाएंगे, डाइवर्जिंग जाएंगे, इन ऑल डायरेक्शन जाएंगे, ऐसे जाएंगे, बराबर। बट डू यू रिमेंबर रे ऑप्टिक्स, एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसका मतलब पता है क्या होता है, रेज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस दे बिकम पैरेलल। मैंने इसलिए तुमको बहुत बार बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो, इमेज कहाँ बनता है, फोकस। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनता है, और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो रेस कैसे होते हैं, पैरेलल, बराबर। और लेंस से पास होने के बाद रेस क्या होते हैं, कॉन्वर्ज। ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे, रेस कैसे थे, पैरेलल। लेंस से पास होने के बाद क्या हुआ, कॉन्वर्ज। कहाँ कॉन्वर्ज, फोकस पे। और जब तुम उल्टा करते हो, तुम जब ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रख देते हो, तो रेस डाइवर्जिंग होते हैं।
और लेंस से पास होने के बाद वो बन जाते हैं पैरेलल। इसको पैरा एक्सियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा एक्सियल। ठीक। तो लेंस के पहले मैंने जब सोर्स रखा था, लेंस के पहले, तो जो वेव फ्रंट था वो कैसा दिख रहा है तुमको? स्पेरिकल दिख रहा है ना, स्पेरिकल डाइवर्जिंग है। और लेंस से पास होने के बाद प्लेन, देखो वो भी लिखा है, लिखा है वहां पे। इफ अ पॉइंट सोर्स इज केप्ट एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अ प्लेन वेव फ्रंट emerges फ्रॉम द लेंस। बराबर, करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है कि हमको अगर प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, जो तुमको लगेगा आगे एक्सपेरिमेंट्स में, हम लोग प्लेन वेव फ्रंट, क्या था कंडीशन फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट? वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी। तो प्रैक्टिकली यू कैन नॉट कीप सोर्स इन दिल्ली एंड योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन मुंबई। हाँ, इन्फिनिटी पे चाहिए था, मैं बाहर पे रख के आ गया, वैसा तो नहीं चलता ना। तो हमको स्पेरिकल वेव फ्रंट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्लेन वेव फ्रंट में। तो प्लेन वेव फ्रंट, इफ द सोर्स, ऑफ कोर्स पॉइंट सोर्स, इफ द पॉइंट सोर्स is at very large distance, if the point source is at very large distance, at very large distance, the wavefront is a very small part. किसका small part? Sphere का. Is a very small part of spherical wavefront, basically spherical wavefront, which is called as, क्या बोलोगे इसको? Which is called as plane wavefront. Good. लेकिन प्रैक्टिकली प्लेन वेव फ्रंट बनाना है तो फिर हम लोग पॉइंट सोर्स को कहाँ रख देते हैं? फोकस। किसके फोकस पे? कॉन्वेक्स लेंस के। तो द रेज एमर्जिंग आउट फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस से बाहर आने वाले रेज एमर्जिंग, दे फॉर्म विच वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट। अभी मैं वो लिखूंगा नहीं, वो अभी आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डायग्राम को रहने देता हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन हियर। वी हैव जस्ट कन्वर्टेड अ स्फेरिकल वेव फ्रंट इनटू अ प्लेन वेव फ्रंट। एक्सीलेंट। अभी तीसरा टाइप का वेव फ्रंट है सिलेंड्रिकल। ये तो आपके रियल लाइफ में, आपके सराउंडिंग में अभी भी बन रहा है। यस, कैन यू गेस? ट्यूबलाइट्स। ट्यूबलाइट्स। So when a source is in the shape of a slit या फिर tubes, then the wavefront so obtained is a cylindrical wavefront. अब ये स्लिट क्या होता है? वेरी सिंपल। ओके, कैन यू सी मी? नो, राइट। अभी मैं दो ऐसे विंडो रखता हूँ और थोड़ा सा स्लाइड ओपन कर देता हूँ, इसको बोलते हैं स्लिट। सो स्लिट इज अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। पैरेलल है ये दोनों विंडोज। सो इसको बोलते हैं स्लिट। अ वेरी स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्लिट। तो ऐसे केस में जो वेव फ्रंट बनता है वो क्या होता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सो सोर्स if the source is in the shape of or in the form of is in the form of a slit, और सर्कुलर ओपनिंग को एपर्चर बोलते हैं। सर्कुलर ओपनिंग को एपर्चर बोलते हैं, राइट। और इसको बोलते हैं स्लिट, इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्लिट और अ ट्यूब, देन द wavefront obtained then the wavefront obtained is known as cylindrical wavefront, is known as cylindrical wavefront. यहाँ तक क्लियर? अब ये सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट क्यों बोला है वो भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से मेरे पास ये ट्यूबलाइट था। नाउ इमेजिन, हमने जब ट्यूबलाइट स्टार्ट किया, बाय द वे ये जो ट्यूबलाइट है इसके अंदर ये असम्पशन है कि ये ट्यूबलाइट के ऊपर और नीचे लाइट इमिट नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट इमिटिंग साइडवेज। तो व्हेन इट इमिट्स लाइट समथिंग लाइक दिस, सेम स्टोरी रिपीट्स। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द सराउंडिंग मीडियम इज सी, तो इन टाइम टी, जितने भी वेव्स यहाँ से निकलेंगे, जितने भी वेव्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं, ऑफ कोर्स जितने भी वेव्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं, उनके लिए अगर आप देखोगे तो लोकस कैसा बनेगा?
तो इफ यू सी, क्योंकि मैं सिर्फ साइड वेव्स की बात कर रहा था, साइड वे, तो ये सारे पॉइंट सेम फेज के, इनको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे भी ये सारे पॉइंट सेम फेज वाले, इनको कनेक्ट कर दिया। तो व्हाट डू यू सी? सिलेंड्रिकल शेप। Hence, in this case, the wavefront so obtained is cylindrical wavefront. हमको आगे डिफ्रैक्शन पैटर्न में सिर्फ स्पेरिकल और प्लेन वेवफ्रंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो इट वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज, बट वी विल रिक्वायर स्पेरिकल और प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट हो गया। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वेव नॉर्मल। नाम में ही है वेव नॉर्मल, तो मैं इसको डिफाइन विफाइन करूंगा नहीं यहाँ पे, मतलब मैं करके दूंगा लेकिन लिखूंगा नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल? बात खत्म। तो क्या है कि जो वेव फ्रंट है ना, आप वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, उसको वेव नॉर्मल बोलते हैं। व्हाट इज वेव नॉर्मल? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ वेव फ्रंट इज नोन एज वेव नॉर्मल। थोड़ा सा वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है नोट्स में, तो व्हाट आई एम सेइंग वो सुन लो और बाद में जाके तुम लिख सकते हो। द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट is known as wave normal, and wave normal gives direction of propagation of waves। तो जो वेव नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में वेव आगे जाएगा, मतलब उस डायरेक्शन में वेव फ्रंट आगे जाएगा। तो वेव नॉर्मल गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट। है दैट क्लियर? तो व्हाट इज वेव नॉर्मल? द नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन एट एनी पॉइंट of a wave front is known as wave normal. Correct? And wave normal gives the direction of propagation of wave front. Are that clear? Good. तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, विल सी समथिंग कॉल्ड एज ह्यूजेंस प्रिंसिपल। है ना? हाँ, ह्यूजेंस है ये, इट इज नॉट हाइजेंस। ह्यूजेंस प्रिंसिपल, मैं तो उसको ह्यूजेंस ही बोलूंगा। गुड। तो मेरे को अच्छा लगता है ह्यूजेंस नाम, तो मैं ह्यूजेंस बोलूंगा। यू कैन से इट इज हाइजीनिक, हाइजेंस। एनीवेज, अभी यूजेंस प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली यूजेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। मतलब फॉर एग्जांपल, ये सोर्स ऑफ लाइट है, हमने इसका स्विच ऑन किया, देन लाइट स्टार्ट्स गोइंग इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको बोलते हैं प्रोपगेशन। तो ये लाइट एक गिवन मीडियम में प्रोपोगेट कैसे हुआ? अगर मेरे पास एक स्पेरिकल शेप का बल्ब है, उसका बटन चालू कर दिया मैंने, तो लाइट गोज इन ऑल डायरेक्शन, है ना? राइट, इन ऑल डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड क्यों गया, बैकवर्ड क्यों नहीं गया? कभी सोचा है ऐसा? हमने लाइट चालू कर दिया, लाइट वहां से हमारे पास आ रहा है, उल्टा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे बचा कुचा लाइट था, उसको भी ले लेना चाहिए था अंदर, जस्ट लाइक ब्लैक होल, इट डज नॉट अलाउ लाइट टू गो आउट। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल याद रखना, ये क्या करता है? इट एक्सप्लेन्स। तो यूजेन एक्सप्लेन्ड यूजेन एक्सप्लेन्ड द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, the propagation of light in a given medium, propagation of light in a given medium based on based on some principles या some assumptions भी बोल सकते हो। नंबर वन, एनी पॉइंट या फिर एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट acts as secondary source of light and emits secondary wavelets। मतलब सेकेंडरी वेव वहां से इमिट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, तो उसका वेव फ्रंट क्या था? स्फेरिकल। अब इस वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट, इट बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। इसलिए मैंने तुमको पहले प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स बताया। प्राइमरी सोर्स इज सोर्स विच इमिट्स इट्स ओन लाइट, सेकेंडरी सोर्सेज आर सोर्सेस विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट। तो ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट पे जो मैंने पॉइंट्स दिखाए, are they emitting their own light? No, right? But they behave as if they are emitting their own light. So all the points, every point on a wavefront
acts as या फिर behaves as if it is a secondary source of light and emits secondary। अभी जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है ना, इसको नाम चेंज करके वेवलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेट्स। क्या बोलते हैं इसको? वेवलेट्स। राइट। तो जो प्राइमरी सोर्स ने वेव फ्रंट इमिट किया उसको वेव फ्रंट बोलते हैं, जो सेकेंडरी सोर्स ने वेव फ्रंट इमिट किया उसको वेवलेट बोलते हैं। तो तुम अगर पहला पॉइंट देखोगे ना, ह्यूजेंस प्रिंसिपल का, उसमें वही लिखा हुआ है। ओके, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स एज इफ इट इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट सेंडिंग सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट को वेवलेट नाम देंगे हम लोग। तो एवरी पॉइंट किस पे? ऑन अ वेव फ्रंट। फिर वेव फ्रंट कोई भी टाइप का हो, स्पेरिकल हो, प्लेन हो, सिलेंड्रिकल हो, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट behaves as behaves as if it is a secondary source of light, secondary source of light, and and emits emits secondary waves, of course in all possible directions, secondary waves। यहाँ तक ठीक है? करेक्ट। गुड। तो कमिंग बैक, दिस वाज प्राइमरी वेव फ्रंट। ये आ गया आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट, जिसको तुम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हो। बराबर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर आप देख रहे हो तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, यू सी दे आर आल्सो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दे आर आल्सो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर लाइट सोर्स के अंदर क्यों नहीं गया, बाहर ही क्यों आया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों गया? लाइट अंदर जाना चाहिए था ना। क्योंकि हमने क्या बोला, वेव फ्रंट क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। एकदम क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे हमने। वेव फ्रंट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, या फिर वेव नॉर्मल गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट। बराबर। तो मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, तो व्हाट डू यू सी? दिस सेकेंडरी वेव शुड गो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो यूजन ने बोला, क्या बोला? सेकेंड नंबर पॉइंट, दिस, हाँ, दिस सेकेंडरी वेवलेट्स आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। दिस सेकेंडरी वेवलेट्स, दिस सेकेंडरी वेवलेट्स आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों होता है वो तुमको अगले 10 मिनट में समझ जाएगा। वाई दे आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल। वैसे वो अजम्पशन था तो ठीक है, नहीं भी लिखा तो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पॉइंट लिख देना। इसका मतलब जो बैकवर्ड डायरेक्शन का जो वेवलेट का पार्ट है वो तुमको लेना ही नहीं है। यू आर जस्ट सपोज टू टेक फॉरवर्ड डायरेक्शन। बराबर। गुड। व्हाट वाज यूजेन ट्राइंग टू एक्सप्लेन? हाउ डज लाइट प्रोपोगेट? मतलब लाइट फॉरवर्ड कैसे जा रहा है। करेक्ट। तो उसने तीन प्रिंसिपल दिए। प्रिंसिपल नंबर वन, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव्स एज इफ इट इज अ secondary source of light which emits secondary waves. This wavelets, secondary wavelets are effective only in forward direction। अगर मुझे वेव फ्रंट का नया पोजीशन चाहिए, नया पोजीशन, क्योंकि ये वेव फ्रंट आगे 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 जा रहा है, राइट। तो द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट is the common tangent drawn to this secondary wavelets. What is common tangent? What is tangent? A line, a curve which touches a given geometrical curve only at। तो मैं इन तीनों को अगर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसा, बराबर, तो ये कॉमन टेंजेंट क्या है? द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, मतलब रिजल्टेंट वेव फ्रंट, राइट। तो देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, क्या बोला है थर्ड पॉइंट में? रिजल्टेंट वेव फ्रंट एट एनी पोजीशन इज गिवन बाय tangent to all the secondary wavelets at that instant। ओके। तो जो रिजल्टेंट वेव फ्रंट है, द रिजल्टेंट वेव फ्रंट, हाउ डू यू ऑब्टेन रिजल्टेंट वेव फ्रंट? व्हाट इज रिजल्टेंट वेव फ्रंट?
at any position is is given by is given by common tangent, is given by drawing a common tangent, ठीक है, by drawing a common tangent. किसको common tangent draw किया? To all these secondary wavelets, all these secondary wavelets at that instant of time. ठीक है, वो मैं लिखूंगा नहीं अभी, इतना पता होना चाहिए. गुड, राइट. तो यूजेन ने प्रोपगेशन ऑफ लाइट को, प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट को एक्सप्लेन किया बेस्ड ऑन थ्री प्रिंसिपल्स. नंबर वन इज every point on a wave front behaves as if it is a secondary source of light giving out emitting secondary wavelets या फिर secondary waves. Correct? Clear? These secondary wavelets are effective only in forward direction. The resultant wave front at any position is given by drawing a common tangent to this secondary wavelets, to all these secondary wavelets. अभी बेस्ड ऑन दिस थ्री असम्पशंस, थ्री प्रिंसिपल्स, हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट मतलब प्रोपगेशन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट मतलब प्रोपगेशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एक्सप्लेन करेंगे. एंड अगेन आई विल नॉट राइट डाउन सिंगल वर्ड ऑफ थ्योरी हियर, क्योंकि जरूरत नहीं है, वो बहुत इजी करके लिख के दिया है मैंने. तो वी विल फर्स्ट एक्सप्लेन प्रोपगेशन. एक्चुअली वहां पे करेक्ट वर्ड होना चाहिए था प्रोपगेशन, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कंस्ट्रक्शन, तो ठीक है कंस्ट्रक्शन, कोई बात. Construction of a spherical wavefront, but the correct word is propagation of a spherical wavefront. Similarly, you will explain propagation or construction of a plane wavefront. Propagation or construction of a plane wavefront. तो तुमको ये दो wavefronts का propagation explain करना है of a plane wavefront, right? तो फिर हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट सोर्स लेते हैं. पॉइंट सोर्स कौन सा वेव फ्रंट बनाएगा? तो हम लोग अभी पूरा स्पेरिकल वेव फ्रंट दिखाएंगे नहीं, हम लोग सिर्फ उस स्पेरिकल वेव फ्रंट का एक सेक्शन दिखाएंगे, पी क्यू. पी क्यू, राइट? गुड. So what we have done is we have considered a source of light h which is at a finite distance, मतलब small distance, and hence this wavefront produces spherical wavefront. उस spherical wavefront का मैंने एक सेक्शन ले लिया पी क्यू, और इस पी क्यू सेक्शन पे मैं तीन चार पॉइंट दिखा देता हूँ. सो लेट अस टेक ए पॉइंट, सम पॉइंट ए. ये जो ए पॉइंट है ये कैसा बिहेव करेगा? सेकेंडरी सोर्स. तो सेकेंडरी सोर्स है तो क्या इमिट होगा? सेकेंडरी वेवलेट. तो ये हो गया सेकेंडरी वेवलेट ए का. सिमिलरली इसके बाजू में और एक पॉइंट है, वो होगा लेट अस से बी. ये हो गया सेकेंडरी वेवलेट बी का. उसके बाजू में और एक पॉइंट है सी, सेकेंडरी वेवलेट सी का, सो ऑन सो फोर्थ. उसके बाजू में और एक पॉइंट है डी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो व्हाट वी हैव डन इज टू एक्सप्लेन. मैं आपको बता दूं लिखना कैसे होता है एग्जाम में. इट इज टू सिंपल, टू सिंपल. तो फिजिक्स सबसे सिंपल इसके लिए भी है. लिखना है, लिखना है तो क्या, जो समझा है वो लिखना है. क्या समझा तुमको? तुमने सबसे पहले क्या लिया? एक सोर्स लिया एस. कंसिडर अ पॉइंट सोर्स एस ऑफ लाइट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस. फाइनाइट क्यों? क्योंकि मैं स्पेरिकल वेवफ्रंट की बात कर रहा हूँ, तो स्पेरिकल वेवफ्रंट के लिए क्या चाहिए? फाइनाइट डिस्टेंस चाहिए, राइट? करेक्ट. इमेजिन पी क्यू इज अ सेक्शन ऑफ स्पेरिकल वेवफ्रंट. कंसिडर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी on this wavefront, spherical wavefront. According to Eugen's principle, these points act as secondary source of light, giving out secondary wavelets. तो ये secondary wavelets है, right? And as you know that the secondary wavelets are effective only in forward direction. And we know that, what do you know? What do you know? The resultant wavefront is is obtained by or is, अरे क्या था, अभी तो लिखा, अभी तो लिखा. The resultant wavefront at any position is given by drawing a to all these secondary wavelets. तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक, ये एक
कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे देंगे पी डैश क्यू डैश, बराबर। तो पी डैश क्यू डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, रिजल्टेंट वेव फ्रंट। फिर वापस से इस पे तुम पॉइंट लोगे, ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। फिर ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी सोर्सेस। फिर वो क्या इमिट करेंगे? सेकेंडरी वेवलेट। फिर तुम क्या ड्रॉ करोगे? कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे, बराबर। इसका मतलब जो नया कॉमन टेंजेंट होगा दैट इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, बराबर। अब मैंने आपको बोला था कि आई विल टेल यू व्हाई वी कैन से दैट दिस सेकेंडरी वेवलेट्स आर ओन एक्टिव इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हैव अ गेस, सिर्फ ऐसा गेस करो, मैं ये सब हटा दूंगा यहाँ से, सिर्फ गेस कर लो, गेस। कैंसल हो रहा है, ओके। ऐसा होता है, ये ऐसा इमेजिन करना पड़ता है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू इमेजिन। गुड। तो जो वेव फ्रंट है उसका फॉरवर्ड पार्ट और जो अगला वेव फ्रंट है उसका बैकवर्ड पार्ट क्या हो रहा है? कैंसल हो रहा है। दिस इज हाउ यू कैन इमेजिन। अब ये सेम स्टोरी रिपीट होती है, सेम सेम वर्ड टू वर्ड सेम है, सिर्फ एक चेंज है। दिस टाइम यू विल अज्यूम दैट द सोर्स इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस या फिर इनफिनाइट डिस्टेंस। और ये जो पी क्यू सेक्शन था, दिस टाइम दिस पी क्यू सेक्शन इज अ सेक्शन ऑफ विच वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट। और फिर हमने इस पे ले लिए पॉइंट्स, ए पॉइंट विच विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड देन दिस इज सेकेंडरी वेवलेट। उसके बाद वापस से यहाँ पे आ गया आपका सेकेंडरी वेवलेट। उसके बाद वापस से एक दूसरा पॉइंट होगा, सम पॉइंट, उसका वेवलेट। अभी मैं तीन ही पॉइंट दिखा रहा हूँ। तो ये आ गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, बराबर, करेक्ट। तो पी क्यू ये सेक्शन था, किसका सेक्शन था? प्लेन वेव फ्रंट का। प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स का होना चाहिए इन्फिनिटी पे, इसलिए पूरे पिक्चर में मैंने सोर्स नहीं दिखाया, यहाँ पे दिखाया, वहां नहीं दिखाया। गुड, राइट। फिर ये सेकेंडरी वेवलेट्स को मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने वाला हूँ, दैट विल गिव द रिजल्टेंट वेव फ्रंट, या फिर तुम बोल सकते हो द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। और इसको मैं बोल दूंगा पी डैश क्यू डैश। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। फिर ये पी डैश क्यू डैश पे वापस पॉइंट इमेजिन करोगे, दे विल इमिट सेकेंडरी वेवलेट्स। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। अगला टॉपिक क्या है? हाँ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट लेक्चर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था और हमने आज के ही लेक्चर में रिवीजन वहीं से स्टार्ट किया। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आई हैव टोल्ड यू टू लॉज, incident ray, reflected ray, and normal run at the point of incidence lie in the same plane, and incident angle of incidence and angle of reflection are equal provided the reflection is in the same medium, I equal to R। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है। रे ऑप्टिक्स में तुम सिर्फ बात करते हो डायरेक्शन ऑफ लाइट की, वहां पे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सिर्फ मेंशन करके रख दिया था, हमने कहीं प्रूव नहीं किया था। और इसमें हमको प्रूव करना है। तो पहला रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस में तुमको आई इक्वल टू आर शो करना है, और दूसरा रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में तुमको म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर शो करना है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि तुमको करना क्या है, ये बोलो मत। इफ यू रिमेम्बर व्हाट यू सपोज टू डू, तो अपने आप डेरिवेशन हो ही जाएगा। तो रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस, अगेन आई विल नॉट राइट डाउन अ सिंगल वर्ड ऑफ थ्योरी, सिर्फ डेरिवेशन एंड डायग्राम, राइट, क्योंकि वो तुम कर लोगे। मैं बीच में बताता जाऊंगा कि कैसा लिखना होता है एग्जाम में, बट यू शुड ओनली फोकस एट द रिक्वायर्ड ज्योमेट्री पार्ट हियर। गुड। देखो, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस में क्या शो करना है? आई इक्वल टू आर, तो पहले वो पता होना चाहिए। गुड। देन, क्योंकि लिखा है नाम में, टॉपिक के नाम में ये रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, तो पहले प्लेन सरफेस लो। तो कंसीडर, क्या कंसीडर? अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, दिस इज प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, करेक्ट नहीं सर? अब अब ऐसा है कि हमारे पास एक वेव फ्रंट है ए बी, वेव फ्रंट है ए बी, प्लेन वेव फ्रंट है ए बी। तो इमेजिन अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी
ए बी, बाउंडेड बिटवीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंडेड? बाउंड्रीज, बाउंडेड, यू आर ऑल्सो बाउंडेड इनसाइड दिस क्लासरूम। वैसे वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। वैसे प्लेन वेव फ्रंट प्लेन होता है, लेकिन हम उसको लाइन दिखाते हैं, बराबर। मान लो कि इस तरफ से मैंने एक बाउंड्री डाल दी, इस तरफ से एक बाउंड्री डाल दी, तो दिस पेन विच इज अ प्लेन वेव फ्रंट इज बाउंडेड बिटवीन दीज टू फिंगर्स। सिमिलरली यहाँ पे जो वेव फ्रंट है, ये जो वेव फ्रंट मैंने दिखाया ए बी, एक काम करते हैं, इधर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सिमिलरली इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो प्लेन वेव फ्रंट था इसको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। वेरी गुड, बाउंड कर दिया। तो नाम भी दे देंगे, बाउंडेड बिटवीन पी ए एंड क्यू बी, कुछ नाम दे दिए। गुड, नेम तो तुमको जो देना है वो दो, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है ए बी। सबसे पहले हमारे पास प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्स वाई, उस पे एक प्लेन वेव फ्रंट पी ए बी, सॉरी। सो कंसिडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी बाउंडेड बिटवीन पी एंड क्यू बी इज इंसिडेंट ऑब्लिकली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिकली? देयर आर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स दैट यू मस्ट नो, थ्री टाइप्स। एक होता है ग्रेजिंग, एक होता है नॉर्मल, एक होता है ऑब्लिक। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगर ये पता नहीं होगा ना, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर वेव फ्रंट ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा मतलब ये नॉर्मल के डायरेक्शन में आया। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हो? परपेंडिकुलर। तो ये जो वेव फ्रंट है ये कैसा आ रहा है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जीरो। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। अगर वेव फ्रंट अगर वेव फ्रंट ऐसा आया, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। और अगर ये बीच में आया, ना नॉर्मल है ना ग्रेजिंग है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक। तो हमारा जो वेव फ्रंट है ए बी, वो इस सरफेस पे कैसा इंसिडेंट हो रहा है? ऑब्लिक। तो कंसिडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी बाउंडेड बिटवीन पी एंड क्यू बी, बी इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन दिस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। है तो क्लियर? बराबर, गुड। अब ऐसा है, क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो इमेजिन क्या होगा। ये ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, और ये यहां पहुंच गया। तो पहले कौन पहुंचा? ए, बराबर, राइट। सिंस द इंसिडेंस इज ऑब्लिक, ए रीचेस द सरफेस फर्स्ट एट ए डैश। जब ए डैश पे था, तो बी डैश पे है, लेकिन अभी तक वो पहुंचा नहीं है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? और इधर उसको एन बोल देते हो क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल। करेक्ट। अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो, इसके लिए एंगल्स का नाम भी यहाँ लिखते जाते हैं। एन ए डैश, एन ए डैश ए, या फिर एन ए डैश पी, क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, गुड। मैं साइमल्टेनियसली एंगल्स लिखते जाऊंगा बिकॉज दे मेक अ बिग डिफरेंस। एक साथ सब ड्रॉ करने जाओगे तो 100% यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। 100% समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है इधर, तो इसलिए एक एक करके। गुड, बराबर। यहाँ तो क्लियर। व्हाट इज ह्यूजेंस थ्योरी? ह्यूजेंस प्रिंसिपल, नॉट थ्योरी, प्रिंसिपल। ह्यूजेंस प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज अ, जैसे ही ए डैश पे पहुंचा, मतलब जैसे ही ए पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पहुंचा, इसने अपना काम चालू कर दिया। क्या काम है इसका? सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करने का, बराबर। बी डैश अभी तक, बी तो पहुंचा नहीं है, बी डैश को सी तक आना है। और अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जो जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा था, उसमें अगर लाइट का स्पीड सी है, सी, क्योंकि ऊपर मैंने एयर मान के रखा है ना, या वी मान लो, चलो वी है। तो व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम? वी, बराबर। और बी डैश को सी तक आने में अगर टाइम लगता है टी, तो व्हाट इज बी डैश सी? डिस्टेंस इनटू टाइम। क्या बोल रहे हो, डिस्टेंस इनटू टाइम?
स्पीड इंटू टाइम बोलना चाहिए ना। हाँ, तो ये बी डैश टी क्या होगा, वी इंटू टी। मैं वापिस बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस था। अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता तो ए भी एक साथ पहुंच जाते, नॉर्मल होता तो। अगर ग्रेजिंग होता तो बी कभी पहुंचता ही नहीं, सिर्फ ए पहुंचता। ऑब्लिक इंसिडेंस है तो ए पॉइंट पहले पहुंच गया। जब ए पॉइंट एक्स वाई मतलब ए डैश पे पहुंच गया, तब बी कहाँ था, बी डैश। अगर स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में वी है, तो बी डैश को सी तक आने में अगर टाइम टी लगता है, तो बी डैश सी इज वी टी। स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, बराबर ना। मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड इज मीटर, तो बराबर है। यहाँ तक क्लियर है, राइट। जागो जागो, थेरी है। अभी क्या करूँ फिर, मैं नहीं पढ़ाऊँ, नहीं वो तो नहीं होगा, जान दो। गुड, यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, श्योर श्योर। जाए आगे कि चाय चाहिए आपको, नहीं, गुड। तो ऐसा है, बी डैश सी तक आने में टाइम लगाता है टी, लेकिन उतने टाइम में ए डैश क्या करेगा, ए डैश रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब क्या हुआ, उसने सेकेंडरी वेवलेट इमिट करना स्टार्ट कर दिया। तो उतने ही टाइम में जितने टाइम में बी डैश कहाँ तक पहुंचा, सी तक, उतने ही टाइम में इसने एक हेमीस्पेरिकल, मैं हेमी क्यों बोल रहा हूँ उसका एक रीजन है। उतने ही टाइम में एक हेमीस्पेरिकल वेव फ्रंट बना लिया। अभी हेमी क्यों बोला, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अरे नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन का पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ये सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लाइट कभी अंदर जाता है क्या, हाँ तो नहीं जाएगा ना फिर, तो नहीं जाएगा। इसलिए फिर क्या बनेगा, हेमी, हाँ, हेमिस्फीयर। हाफ स्पीयर को हेमिस्फीयर बोलते हैं, दैट्स इट। हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। थोड़ा सा ना मैं इसका साइज छोटा करता हूँ, क्योंकि डायग्राम यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा अदरवाइज। थोड़ा सा यहाँ तक, चलो ठीक है, विल ट्राई टू मैनेज समथिंग आउट ऑफ इट। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है डायग्राम ड्रॉ करने का, उधर ही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। चलो ठीक है, ठीक है, लेट्स सी, विल मैनेज। चलो ठीक है, ओके फाइन, कर लेंगे मैनेज, देखेंगे। ये नीचे का पार्ट नहीं है और डायग्राम में नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, इसे पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर, गुड, बराबर है ना। तो एक काम करेंगे, देखो ये ऐसा वेव फ्रंट आया, रिफ्लेक्ट होके गया, आया और रिफ्लेक्ट होके गया, आया और रिफ्लेक्ट होके गया, ठीक, बराबर। ये पॉइंट को मैं बोल देता हूँ डी। क्या बोल दिया इसको, डी, क्या बोल दिया इसको, डी, वेरी गुड, डी। तो हु कैन टेल मी व्हाट इज ए डैश डी, वी टी। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया तुमको कि बी डैश जब तक सी पे पहुंचेगा, तब तक उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में ए डैश ने क्या किया, हाँ, वेवलेट इमिट कर दिया, बराबर। कौन सा वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट। और ये वेवलेट हेमिस्फेरिकल है, तो उसका उसका रेडियस क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था, वी, और ए डैश को डी तक आने में कितना टाइम लगा, टी। तो ए डैश डी भी क्या होगा, वी टी। ये समझा गया सबको, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। बी डैश जब तक सी में आया, सी तक पहुंचा, उतने टाइम में ए डैश ने एक हेमिस्फीयर बना लिया, सेकेंडरी वेवलेट बना लिया हेमिस्फेरिकल शेप का। उस हेमिस्फीयर का रेडियस होगा आपका वी टी, क्योंकि स्पीड था वी, और हेमिस्फीयर उतने ही टाइम में बना जितने टाइम में बी डैश कहाँ तक आया। हाँ, तो फिर उस हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा, हाँ तो बीटी, तो बीटी है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि इधर एक टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। तो डी और सी को कनेक्ट कर दिया हमने, डी और सी को कनेक्ट कर दिया। देन अभी क्या मैंने अभी तक बताया नहीं है, मैंने अभी तक बताया नहीं है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अभी यहाँ पे होता है जबरदस्त कंफ्यूजन, तो इसलिए जबरदस्त कंफ्यूजन मत करना। ये कौन था, ये कौन है, हाँ 90 माइल्स आया है। मैंने देखो कहाँ से स्टार्ट किया, नॉर्मल से इस रेड लाइन तक। अभी देखो ये एंगल कितना था,
तो ये कौन है? ये कौन है? हाँ, 90 माइनस 90 माइनस, तो ये है 90 माइनस i। मैं बाद में इरेज कर दूंगा उसको। हाँ, तो अभी से तुम्हारे समझने के लिए, अभी फिलहाल टेम्पररीली इसको भूल जाओ। फिलहाल भूल जाओ, फिलहाल फिलहाल भूल जाओ, ठीक है। रिफ्लेक्शन का पार्ट छोड़ दिया मैंने। ये टोटल क्या है? उसमें से वो कौन था? तो ये कौन है? हाँ हाँ, तो ठीक है। अभी इसको वापस लेके आते हैं। अभी 90 माइनस i का काम खत्म हो गया, वो मैंने नोट्स में रखा है, यहाँ पे नहीं रखना है। ये कौन है? बराबर है? गलत है, गलत। गलत है। वो रेड वाले से था, यहाँ से था। ये कौन है? आई। हाँ, अभी सही है। ठीक है। पक्का पक्का। श्योर श्योर। गुड। अभी बात कर लेते थोड़ा सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। देखो, जैसे ये n a', इधर एक नाम दे दे दो। दो तो दो, नहीं तो मत दो। डी लिखा हुआ है, हो जाता है काम हमारा। n a', d, n a', d, n a', b' नहीं, n a', d, n a', b' नहीं, n a', d। ये कौन है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से यहां तक। हाँ, बराबर। क्लियर। गुड। देन, अगर ये आर है, ये टोटल कितना है? तो ये कितना होगा? 90 माइनस। चलो ठीक है। तो ये कितना आ गया? 90 माइनस r। वेरी गुड, वेरी गुड, मेरा काम हो गया। ये 90 माइनस r है, याद रखना। दिस एंगल इज हाउ मच? 90 माइनस r। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, मेरा काम हो गया। ये एंगल क्या है? क्योंकि टैंजेंट था, टैंजेंट और रेडियस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये 90 है, ये 90 माइनस r है। r, i नहीं, r। करेक्ट। व्हाट इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल? तो 90 + 90 - r कितना हो गया? 180 - r। इसको फिलहाल मैं x बोल देता हूँ, x। x क्या बोल दिया इसको? x। तो 90 + 90 - r मतलब 180 - r प्लस x इक्वल टू 180। बराबर है ना? 90 + 90 - r प्लस x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू r। वेरी गुड। तो मैंने पहले इसे जानबूझ के यहाँ पे ऐसे गलती की थी बताने के लिए। ये कौन है? r। वो कौन है? r। आगे ध्यान में, यहाँ तक ध्यान ध्यान में आ गया? पक्का पक्का। तो ये आर एंगल कौन है? ये आर एंगल है डी सी a' या फिर a', ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा खिचड़ी पक गई, इसके लिए हम थोड़ा सा अलग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? बराबर। ए बी कौन था? इंसिडेंट वेव फ्रंट। यहाँ a', b' जाएगा, वो कौन होगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। उसकी जरूरत नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। बराबर। n a', p कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना? उसके बाद n a', d कौन है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी ये जो दो ट्राइंगल है ना, कौन से दो ट्राइंगल? a', b', c और a', d', c। ये हमारे दो काम के ट्राइंगल है। तो कौन से दो ट्राइंगल? a', b', c, a', d', c। ओके। ये है a', ये है c, ये है b', ये है d। करेक्ट। वेरी गुड। उस इसमें ना एक ट्राइंगल में एक आई है, आई। b', a', c, ये एंगल b', a', c एंगल क्या है? आई है। इसमें ना एक एंगल आर भी है, दूसरे ट्राइंगल में। सी डी, ये कौन है? आर है। अभी याद रखो, ठीक है, ना? तो क्लियर। तो फ्रॉम ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल है, एक है a', b', c और एक है a', d', c। इन दो ट्राइंगल में अगर तुम नोटिस कर रहे हो, तुम क्या नोटिस कर रहे हो पता है? तुम नोटिस कर रहे हो कि b', c और a', d दे आर सेम। b', c and a', d, b', c and a', d दे आर सेम। सेम है।
और एक साइड और एक सेम है, कॉमन साइड, ए सी इज कॉमन साइड, हाँ ए डैश इज कॉमन, बराबर। उसके बाद दो एंगल भी 90 है, ये एंगल और ये एंगल, मतलब ए डैश बी डैश सी और ए डैश डी सी, एंगल ए डैश बी डैश सी एंड एंगल ए डैश डी सी बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है, बराबर। दिस कंडीशंस आर सफिशिएंट कॉन सिमिलर, सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, राइट। उधर मैंने क्या लिखा है, हाँ तो उसको करेक्ट कर लेना, सिमिलर, राइट। देयरफॉर ट्राइंगल्स A dash B dash C and triangle A dash DC are similar। आपके टेक्स्ट बुक के पुराने राइटअप में वहाँ कॉन्ग्रुएंट लिखा था, तो ठीक है, एनीवे सिमिलर है, चलो ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, बता, जो बचे हुए दो एंगल है ना वो सेम है, ये दोनों एंगल्स क्या है, सेम, मतलब देयरफॉर विच एंगल, एंगल बी डैश ए डैश सी एंड डी सी ए डैश, डी सी ए डैश, दे आर इक्वल, बट बी डैश ए डैश सी कौन था, आई, और वो कौन था, देयरफॉर आई इक्वल टू, हेंस प्रूव्ड। तो इतना सारा मैथमेटिक्स करना पड़ता है टू शो आई इक्वल टू आर। रिफ्रैक्शन का केस थोड़ा सिंपल जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में देखो प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दोनों के दोनों, उधर तो सेम प्लेन था ही, सेम मीडियम में, इसलिए यहाँ पे वेव फ्रंट ओवरलैप होने की वजह से थोड़ा एंगल्स को वर्कआउट करने में कंफ्यूजन होता है। इफ यू सी रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस वो सिंपल है, वहां पे भी सेम आइडिया है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जैसे तुमने यहाँ दो ट्रायंगल लिए वहां भी दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल बनेगा ऊपर के पार्ट में, एक बनेगा नीचे के पार्ट में, इसके लिए वहां कंफ्यूजन कम हो, राइट। तो आई थिंक इट इज क्लियर। इज देयर एनीवन हु वांट्स मी टू रिपीट दिस, जल्दी, यू हैव लेस देन 30 सेकेंड्स टू रिस्पॉन्ड। क्लियर है एकदम, पक्का पक्का, वेरी गुड। तो अभी आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बोला था रिफ्लेक्शन एट प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस, कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, तो लिखना राइटअप भी सेम है। जैसे वहां बोलोगे कंसिडर अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, यहाँ बोलोगे कंसिडर अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई, स्टोरी सेम है, स्टोरी, राइट। तो देन इमेजिन, क्या इमेजिन, नहीं नहीं नहीं, वेव फ्रंट नहीं, प्लेन वेव फ्रंट, अ प्लेन वेव फ्रंट बाउंडेड बिटवीन पी ए क्यू बी, पी ए एंड क्यू बी। तो हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, which is bounded between PA and QB, is incident obliquely किस पे obliquely, at plane refracting surface XY। वेरी गुड, ये हो गया आपका नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी आप बोलोगे इंसिडेंस तो यहाँ पे भी हुआ, फिर मैं नॉर्मल यहाँ क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, डजेंट मैटर रियली, ओके, गुड। और यहाँ पे मैं फिलहाल इसको मैं सिर्फ मेरा जितना जरूरत है उतना रखता हूँ, बाद में देखेंगे, चलो ठीक है, छोड़ो, नाम नंबर देना ही है। इसको बोल दिया आई, इसको बोल दिया एल, एंड आई ट्राई नॉट टू चेंज द नोटेशंस, क्योंकि फिर अगर तुम रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन में आते वक्त नोटेशन चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी सारी, तो नोटेशन सेम रखो। ए पहले पहुंचा, कहाँ पहुंचा, ए डैश पे, तब बी कहाँ था, बी डैश पे। हाँ तो क्लियर, पक्का पक्का, गुड, ओके। जैसे ही ए ए डैश पे पहुंचा, उसने अपना काम चालू कर दिया सेकेंडरी वेवलेट से मेट करने का, और बी डैश को सी तक आने में टाइम लग गया टी, तो बी डैश सी होगा वी टी, नहीं वी वन टी, क्योंकि यहाँ पे ये मीडियम वन है विद रिस्पेक्टिव इंडेक्स वी वन, तो इसका स्पीड होगा लाइट का यहाँ पे वी वन,
ये मीडियम टू है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव म्यू टू है, स्पीड होगा v2। तो बस रिफ्रैक्शन में यही तो चीज़ है कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज होगा। दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो नाउ। गुड। देन यहाँ तक क्लियर है। फिर जो एंगल था वही एन ए डैश पी, वो कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एन ए डैश पी इज इक्वल टू आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अब होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। इफ द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये हो गया बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसा। गुड। ये हो गया आपका यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, फाइन, गुड इनफ। यहाँ पे ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। पिछले केस में आर था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो व्हाट हैपेंस इज, as soon as A reaches A dash, it starts emitting secondary wave, and hence there will be a secondary wavelet। secondary wavelet जब तक जब तक B डैश कहाँ पहुंचेगा? सी पे, तब तक ए डैश ने दूसरे मीडियम में सेकंड मीडियम में क्या बना लिया? हेमिस्फीयर। ये है पॉइंट डी, बराबर। फिर मैं वापस से वही करूंगा, एक टैंजेंट ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ तक क्लियर है? करेक्ट। सिर्फ इस बार क्या है, क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर है ये उतने ही टाइम में बना था, तो ए डैश टी विल बी इक्वल टू v2t, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्पीड। क्लियर यहाँ तक? और ये जो मैंने एंगल लिखा ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ एन डैश। तो ये जो एन डैश ए डैश डी है, वो कौन है? आर है। दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बराबर। बाकी पूरा स्टोरी सेम है। ये आई है तो ये कौन है? तो फिर ये कौन है? आई। तो बी डैश ए डैश सी कौन है? आई। वो तुम लिख लोगे अब। चलो मैं लिख देता हूँ, लेकिन देन यू हैव टू राइट डाउन एन एग्जाम ऑल्सो। बी डैश ए डैश सी इक्वल टू आई। ये आर है तो ये कौन है? ये कौन है? ये 90 माइनस आर है, ये कौन है? 90। फिर ये कौन है? आर। वेरी गुड। तो ये आपका बन जाएगा आर। तो एंगल कौन सा? एंगल ए डैश सी डी। तो मैं जो आपको नोट देता हूँ ना, उसमें तुम अगर देखोगे, आई ट्राई नॉट टू चेंज द नोटेशन सो दैट यू, इवन इफ यू मेक अ स्मॉल मिस्टेक, ठीक है, नोटेशन सेम है। नोटेशन सेम है तो बेसिकली क्या होगा, तुम कम से कम स्टेप भूल भी गए तो कनेक्ट हो जाएगा आगे। अब ये थोड़ा सा सिंपल क्यों है? एक तो देखो डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन है। नंबर टू, आई होप देर इज नो वन जिसको स्नेल्स लॉ याद नहीं रहता है। चलो तुम भूल भी गए, साइन आई और साइन आर, ये तो आता है ना? आता है ना? उस फॉर्मूला में आता है ना स्नेल्स लॉ के, साइन आई और, वेरी गुड। तो ये दो ट्राइंगल है, ए डैश बी डैश सी, ए डैश डी सी। पिछली बार भी वही किया था, ए डैश बी डैश सी और ए डैश सी। अब फिर वही करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, साइन आई क्या चाहिए? क्या चाहिए? व्हाट इज साइन आई? साइन आई ये कौन सा ट्राइंगल से आ रहा है? ए डैश बी डैश सी से। व्हाट इज साइन आई? बी डैश सी अपॉन ए डैश। अरे ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 है ना? 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है ए डैश सी। गुड। एंड फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश डी सी क्या लोगे? साइन आर। साइन आर, व्हाट इज साइन आर? अपोजिट साइड कौन है? ए डैश, ए डैश, ए डैश डी अपॉन, हाँ ओके। तो साइन आर क्या आ गया? ए डैश डी, वेरी गुड, अपॉन ए डैश डी। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। स्नेल्स लॉ में साइन आई बाय साइन आर आता है, कितने लोगों को याद है? स्नेल्स लॉ में साइन आई बाय साइन आर आता है ना? हाँ, तो डिवाइड कर लो। तो साइन आई बाय साइन आर,
बी डैश सी अपॉन ए डैश सी अपॉन ए डैश डी अपॉन ए डैश सी। ए डैश सी, ए डैश सी गया। बी डैश सी वॉज वी वन टी, ये था वी टू टी, टी टी भी गया, कैंसल। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू वी वन बाय वी टू, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। बट डू यू रिमेंबर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो v1 बाई v2 कितना आएगा, म्यू टू बाई, इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 3 and 4 साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय, तो व्हाट इज म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू, और ये कौन था, हेल्स प्रूफ। हो गया, गुड। So that's it for today.